انتم اشد خلقا ام السماء، یہ اللہ ترجمہ تو یہ ہے تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا بنانا مشکل، ترجمہ یہ ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں قابو کرنا مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء، تمہیں بنانا، دوسرے لفظوں میں تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل؟ بناہا، میں نے اسے بنایا، رفع سمکہا، چھت کو اٹھایا، فسواہا، برابر کیا، واغطش لیلہا، رات لایا، واخرج ضحاہا، دن لایا، والارض بعد ذلك دحاہا، زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی نکالا، چارہ نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم، جو اللہ پہاڑوں کو مضبوطی سے جما کے قابو میں رکھے، قطرے قطرے پر اپنی طاقت کو ظاہر کر کے دکھائے، آسمان جیسی بڑی مخلوق کو قابو کر کے دکھائے، 5-6 فٹ کے انسان کو قابو کرنا کیا مشکل ہے؟ تو بھائیو ہمارے لیے امتحان ہے بڑا زبردست، بڑا خوفناک. ہمارے ایک ایک قول فعل پر اللہ کی نظر ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جب اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. قسم میرے بھائیو، انتم اشد خلقا ام السماء، مجھے بتاؤ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں قابو کرنا مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا مشکل ہے؟ میں آسمان کو قابو کر کے دکھاتا ہوں. وہ ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، کرو کرو عمل کرو، راستے کھلے ہوئے ہیں، گناہوں کے بھی، اچھائی کے بھی، برائی کے بھی، ایمان کے بھی اور کفر کے بھی، سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، تمہیں اختیار دیا گیا ہے. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے نافرمانی کرے. لیکن یہ بتایا کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اپنے رب کو غافل مت سمجھو، غافل کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، موت سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو بھی غفلت سے نکالیں کہ صرف ہمارا مسئلہ اپنی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر اس امت کا مسئلہ ہے. جب اکثریت میں نافرمانی آئے گی تو اللہ پاک کے عذاب کے دروازے کھلیں گے، اور جب اکثریت میں فرما برداری آئے گی تو اللہ پاک کے رحم کے، کرم کے، فضل کے دروازے کھلیں گے. یہ تبلیغ کے کام میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائیو اپنی ذات سے بھی توبہ کرو، لوگوں سے بھی توبہ کرواؤ، اپنے مری کا ماحول آپ ایسا بنائیں کہ کوئی بھی یہاں آ کر گناہ کی جرات نہ کر سکے. فضا ایسی پاک بناؤ، مری کے باشندے جو یہاں بیٹھے ہوئے ان سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے ہوٹلوں کا ماحول ایسا بنائیں، فضا ایسی بنائیں، کوئی یہاں آوارگی نہ ہو، یہاں کوئی فحاشی نہ ہو، یہاں کوئی بے حیائی نہ ہو. پہاڑ کے لوگ تو نیک ہوتے ہیں، نیک فطرت ہوتے ہیں. جہاں دنیا کی چمک دمک زیادہ ہے وہیں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے گناہ اور اپنی گندگیاں لے کر آپ کی پاک وادی کو بھی گندا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اکثر ہمارے غافل ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں. کوئی مسلمان اگر بگڑتا ہے میرا ہی قصور ہے، میرا ہی بھائی ہے، میرا ہی بیٹا ہے، میری ہی بہن ہے، میری ہی بیٹی ہے. جیسے اپنے بیٹے کا درد اٹھے ایسے ہر مسلمان بھائی کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں. جیسے اپنی بیٹی کا درد اٹھتا ہے ہر مسلمان بچی کا اپنی بیٹی سمجھ کر درد محسوس کریں. میرے بھائیو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے 100 سال انگریز کی غلامی دیکھی، پھر 100 سال کے بعد وہ خود تو چلا گیا لیکن ہماری ساری نسل کو ذہنی غلام بنا کے چلا گیا. ہم آزاد ہو کر بھی غلام رہے اور آزادی پانے کے بعد بھی ہم
उनकी गुलामी से निकल नहीं सके, तो उनकी मुआशरत, उनकी तहजीब, उनकी जिंदगी वो हमारे मुआशरे में रच गई, गंदे नाले की तरफ फैल गई। जो गंदे नाले का पानी निकलता है तो पाक पानी को भी गंदा कर देता है। शफाफ चश्मे बर्बाद हो जाते हैं जब गंदे पानी के गटर उबलना शुरू हो जाते हैं। इस्लाम की पाकीज़ा जिंदगी, उसमें जो मगरिब की तहजीब के गंदे गटर उबल के आए वो हमारी जिंदगी को भी बहा के ले गए। तो मेरे भाइयों, मैं आप मुख्तसर गला साथ नहीं दे रहा, बिजली आने को तैयार नहीं। सारे भाइयों की खिदमत में ये हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ, अपनी जात से भी तौबा करें और इस आने वाले मुसलमान बच्चे बच्चियों से, बड़े बूढ़ों से भी तौबा करवाएं। अल्लाह पाक जब नाराज हो गया तो फिर वो नहीं देखेगा कि ये होटल वाला तो ठीक था, होटल में आने वाला शराबी था। फिर जब अजाब का कोड़ा बरसता है फिर सबको बहा के ले जाता है। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत वादी अता फरमाई, ठंडा मौसम अता फरमाया, खूबसूरत मनाजिर अता फरमाए। इसका शुक्र यह है कि यहाँ हर आने वाले को अल्लाह का शुक्र गुजार बना दें। अपनी जात से अल्लाह का शुक्र करें, अपनी जात से अल्लाह पाक के हुक्मों के सामने झुकें, उसके महबूब के तरीकों को जिंदा करें और ऐसी फिजा बनाओ कि हर आने वाला बुरे से बुरा इंसान भी यहाँ से तौबा करके वापस जाए, अल्लाह का फरमा बरदार बन के वापस जाए, ना फरमान बन के ना वापस लौटे। तो ये आपकी असल कमाई हो गई। होटलों की कमाई 4 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, फिर आप इंतजार करेंगे सर्दियां आए, बर्फबारी हो, लोग बर्फबारी देखने आए, फिर हमें कमाई हो, फिर वो कमाई गर्मी तक चलेगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने एक मुसलमान आने वाले से तौबा करवा दी, उसको नमाज पे खड़ा कर दिया, किसी बेटी को पर्दा करवा दिया और किसी आवारा को अल्लाह के हुक्मों पर का खुगर बना दिया, तो ये वो कमाई है जो हमेशा चलेगी, अब्दुल्ला आबाद के लिए चलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम देखो, इसी बारिश को अल्लाह अगर हुक्म दे दे तो ये एक बारिश सारे मरी को बहाने के लिए और सारे पाकिस्तान को बहा देने के लिए काफी है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे एक ही बादल बरसा था और सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया था। ऐसी बिजली जो गरजी, अभी ये चमक रही और अभी गरज की आवाज आई, ऐसे ही बिजलियां गरजी थी, ऐसे ही बादल बरसे थे, ऐसे ही आवाज आई थी कौम शुएब पर और ऐसी ही आवाज आई थी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर और एक आवाज उनके कलेजे फाड़ दिए। अखज़तिल्लज़ीन ज़लमुस्सैहा, अस्सैहा, एक चीख आई जिसने उनके कलेजे फाड़ के रख दिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि अक्सर मकामी लोग बैठे हैं, पता नहीं बाहर के बैठे हैं, मुझे ये नहीं पता, मैं मकामियों को खास तौर पे मुखातब कर रहा हूं कि भाइयों, अपनी जात से तौबा करें, आने वालों से तौबा करवाएं, या फिजा ऐसी बनाएं कि जो भी आए वो अल्लाह का फरमा बरदार बन के जाए, अल्लाह की नाफरमानियों से बच कर जाए, अल्लाह के महबूब का गुलाम बन के यहाँ से लौटे। तो ये वो आपकी कमाई है जिसका नफा आप मौत तक भी उठाएंगे, कब्र में भी उठाएंगे, मौत के बाद भी उठाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उठाएंगे। लेकिन इसको खुद तो सीखना पड़ेगा। ये जमातों में फिरना, तबलीग में जाना, ये वो मुबारक मेहनत को सीखने का तरीका है जिससे हर होटल हिदायत का जरिया बने, हर 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 फ्लैट हिदायत का जरिया बने, हर दुकान हिदायत का जरिया बने। इसको पहले सीख लो और फिर इसको अपने होटलों में, दुकानों में चालू करो। हर होटल में नमाज जिंदा करो, अजाने दो, सफ़ें बिछाओ, तालीम के हल्के कायम करो। ऐसी फिजा बने कि हर आने वाला शर्म हया से वो झुकता चला जाए और अल्लाह का फर्मा बरदार बनता चला जाए। ये फिजा आप मरी में बना दें तो शायद ये गफलत का माहौल वो खत्म हो और कुछ आने वालों को आखिरत भी याद आए। कभी दुनिया में भी मजे लूटे किसी ने, आप देखते नहीं, लोग आते हैं 4 दिन रह के चले जाते हैं। कोई मालदार है 10 दिन रहता है, महीना रहता है, 2 महीने रहता है, फिर आखिरी चले जाते हैं और यहाँ फिर मरी खाली हो जाता है। और फिर अगर कोई यहाँ की बहार मनाए, गर्मियों में मरी आ जाए, सर्दियों में सिब्बी चला जाए, गर्मियों में वो अमेरिका चला जाए, सर्दियों में जनूबी अफ्रीका चला जाए, उधर गर्मी इधर सर्दी, अल्लाह ऐसा रिस्क दे
तो भी एक दिन ऐसा आएगा कि मौत उसको मरोड़ के कब्र में डाल देगी। तो भाइयों, वो जवानी भी कोई जवानी है जिससे बुढ़ापा खा जाए, वो जिंदगी भी कोई जिंदगी है जिससे मौत खा जाए, वो खुशियां भी कोई खुशियां हैं जिन्हें गम लूट लें, वो राहत भी कोई राहत है जिन्हें दुख निकल जाएं। ये तो सब धोखा है, फरेब है नजर का, अकल का, खिरद का। अल्लाह ताला हमसे डील कर रहा है कि या मेरी मान लो, आगे तुम्हारी मान लूंगा। इन सल्लम तलीफी मा उरीद कफई तो कफी मा तुरीद, यहाँ तुम मेरी मान लो, वहां मैं तुम्हारी मान लूंगा। यहाँ बादल बारिश बरसाता है, ओले बरसाता है। जन्नत में एक बादल उठेगा, वो बादल पानी नहीं बरसाएगा, ओले नहीं बरसाएगा, सबसे पहले तो उन पर मुश्क व अंबर की बारिश करेगा। सारे जन्नतियों पर मुश्क व अंबर की बारिश करेगा। वो महकते चले जाएंगे, महकते चले जाएंगे। ये बादल तो ना हमारी सुनता है ना समझता है। हम कहते हैं आ जा तो आता नहीं, हम कहते हैं ना आ तो दहाने खोल देता है, हम कहते हैं बस कर तो बस नहीं करता, ये तो हमारी सुनता नहीं। जन्नत का बादल आते ही पहले आपको सलाम पेश करेगा, फिर आप पर मुश्क व अंबर की बारिश करेगा, फिर आपसे सवाल करेगा, आप इरशाद फरमाएं आप क्या चाहते हैं, आप जो कहेंगे मैं वो बरसाऊंगा। जन्नत में अरबों अरब इंसान, हर जन्नती की ख्वाहिश जुदा, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो बादल के दहाने खुलेंगे, पानी की बजाय वो बरसेगी जो मैं चाहता हूं, जो आप चाहते हैं, जो वो चाहता है। एक कहेगा उम्दा लिबास चाहिए तो लिबास की बारिश, एक कहेगा घोड़ा चाहिए तो घोड़ा उतरेगा, एक कहेगा मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज उतरेगी। अहमद इब्न अबिल हवारी फरमाया करते थे, अगर अल्लाह ने मुझे ये मौका दे दिया उस बादल के सामने खड़े होने का, तो जब वो पूछेगा बोलो क्या बरसाऊं, तो मैं उसे कहूंगा मुझ पर तो हूरों की बारिश कर दे। यहां तो रख्त सफर बांधना पड़ता है, यहां तो कूच है, मौत आके आदमी को ले जाती है। लेकिन वो घर है जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं दारल मुकामा, दारल मुकामा, जहां जाके आपका कूच नहीं क़याम है, जहां से आप जाएंगे नहीं करार है, जहां आपको कोई निकालेगा नहीं, हमेशा रहेंगे। और ये जाने का मंजर, एक घर अल्लाह अब आपके लिए खोलने लगा है, एक जगह अल्लाह आपके लिए बनाने लगा है। इस मरी को कितना खूबसूरत बनाएंगे। आज से 20 साल पहले ये ज्यादा खूबसूरत था। जब मैं स्कूल पढ़ता था तो हम आए थे, ये मेट्रोपोल होटलों से फ्लैट होते थे, तो यहाँ 1 महीना हमने क़याम किया। तो इतना खूबसूरत था कि इसकी फितरत बाकी थी, इसकी सादगी बाकी थी, और इसमें इतनी ज्यादा भीड़ भड़का नहीं था, ज्यादा घर नहीं थे। इतना खूबसूरत, वो पहाड़ की चोटी पर घंटों बैठे हम नजारा देखते रहते थे। ऐसी आवारगी नहीं थी, ऐसी बेहयाई नहीं थी, लेकिन सिर्फ माल रोड पर शाम को थोड़े से। लेकिन अब तो नजर उठाने की हिम्मत नहीं रही, कान लगाने की हिम्मत न रही। इस तरह लोग फिर रहे हैं मरी में, जैसे इन पर ना कोई अल्लाह है, न इन पर कोई मौत है, न इनके लिए जहन्नुम है और जन्नत है, न इनके लिए कोई कब्र का गड़ा है। तो आज का मरी तो बहुत बदसूरत हो चुका है। मैं 1967 का मरी अपनी आंखों में घुमाता हूं, जब 1 महीना हम यहां ठहरे थे, तो वो मंजर ही बिल्कुल जुदा था। तो इसका हुस्न मांद पड़ रहा है, घट रहा है। फिर अगर ये और भी हसीन हो जाए तो भी आदमी के देखने का एक हद होती, फिर बस करो यार, बहुत देख लिया, बहुत रह लिया, चलो चलें, चलो चलें। उस वक्त मुझे याद है जून हम पूरा रहे, जुलाई में जो बारिश बारिश बारिश, हम तंग पड़ गए, हम निकल ही नहीं सकते, दफा करो मरी को, चलो घर चलें। वही मुल्तान की गर्मी हमारा मुकद्दर है, फिर वापस चले गए। तो यहां एक लज्जत की भी हद है, देखने की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, सुनने की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, खाने की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, शहवत की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, लिबास की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, जिंदगी की एक हद है, तो हर चीज की हद हो गई। जब जिंदगी की हद है तो हर चीज की हद हो गई। जब आप अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो पहले हद बंदी खत्म करेगा,
حد بندی ختم.